Hello everyone, welcome back. So in this video we are going to discuss the concept of kinetic energy, and like as I told you, like one of the most important theorems in the whole mechanics. So that is work energy theorem. So okay, so let's start with the basics of like what exactly is kinetic energy. Kinetic, यार spelling पता नहीं क्या लिख दिया मैं, just you know the spelling of kinetic energy. Okay, so this is correct. Okay, so kinetic energy by definition it's half mv square. Okay, so like again there is nothing like derivation of sorts, but there is a simple derivation for this half mv square. But वो बस ऐसे समझ लो कि या तो काम चलाने जैसा ही है ये. But in fact ये kinetic energy जो ये defined है कि यार this is some sort of energy that is coming by virtue of the motion of the body. Okay, so if the body is moving with some speed v, your kinetic energy is going to be half m v square. Okay, and this v is speed, right? So अगर मेरा speed है और v square obviously is going to be positive, so half m v square is going to be positive. So kinetic energy can never be negative. This is this is very important. किसी बॉडी का kinetic energy कभी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. ओके, तो इसका एक सिंपल सा डेरिवेशन है कि यार एक ब्लॉक मैंने ले रखा है, हर बुक में तुम्हें देखने को मिल जाएगा कि ब्लॉक ले रखा है और उसमें मैंने कांस्टेंट फोर्स लगाया है F. ठीक है, कांस्टेंट फोर्स लगाया है F. तो मुझे क्या करना है कि वर्क डन बाय दिस, अगर मैं फोर्स की बात करूँ, ठीक है, वर्क डन बाय दिस फोर्स की बात करूँ, तो अगर मैं एक्सप्रेस करूँ तो कहीं ना कहीं वो हाफ एम वी स्क्वायर आ जाता है. कैसे कि अगर यार m है, फोर्स F है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा इसका? एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी F by m and this is supposed to be a constant number. Okay, so F is equal to ma, F is equal to ma से a is equal to F by m आया. ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि यार s डिस्टेंस जब ये बॉडी ट्रैवल करेगा, s डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, सपोज करो ये ट्रैवल करके यहाँ पे आ गया. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो s है, तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ओके, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. ये तो अपने को पता है. यहाँ अज्यूम करो कि स्टार्ट हो रहा है जीरो से, सो u स्क्वायर इज गोइंग टू बी जीरो. सो v स्क्वायर इज हाउ मच रे? v square is going to be 2 into a is going to be f by m into s. Okay, so yeah, like v square is equal to 2 into a into s. So v square is 2 f by m into s, and you can see mv square by 2 is equal to f into s. ये देख लो जैसे mv square by 2 is equal to f into s. अब f into s क्या है? f into s is basically the work done by the body. Okay, work done by the body, and this half mv square is nothing but like kinetic energy of the body. Okay, so assume करो कि अगर ये u square जीरो नहीं होता तो क्या होता? अगर u square जीरो नहीं होता, let me just write it down. Let u not equal to zero. So in that case, we are going to write b square is equal to u square plus 2 into f by m into s. 2 into a into s, a is equal to f by m. तो मैं क्या लिखता? v square minus u square डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई m इज इक्वल टू एफ एस. देख लो v स्क्वायर u स्क्वायर में से लेके आऊँगा तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होगा, फिर m से मैंने मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो सबको समझ में आ रहा होगा. सो f इंटू एस. तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? m v स्क्वायर बाई 2 माइनस m u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वॉट? f इंटू एस. देखो यहाँ पे ये क्या हो गया? वर्क डन बाई दिस फोर्स इज कमिंग टू बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि f, and इसको लिख सकता हूँ मैं k I. So this is what? Nothing but delta k. Delta k is what? F dot s. अब this is going to build the basics of our next topic, that is work energy theorem. You should be able to see कि यार यहाँ पे जो वर्क डन हुआ मेरा, वर्क डन F into S हुआ. ठीक है, ये क्या हुआ मेरा? वर्क डन is coming to be change in kinetic energy. Now think about it. This F can be anything. ठीक है, this F can be a single force or it can be a resultant of many forces. So in this situation you should be able to see कि ये जो F है ना, ये भाई साहब मेरा ये वेट नॉर्मल और जो एक्सटर्नल एजेंट है, सपोज ये F एक्सटर्नल ही था, F एक्सटर्नल अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो इस सिस्टम में जितना फोर्स लग रहा है ना वो टोटल फोर्स मिला के F एक्सटर्नल नहीं होगा क्योंकि वेट और नॉर्मलेशन ने एक दूसरे को कैंसिल कर रखा है. यू कैन ऑल्सो से हियर दैट F एक्सटर्नल इज बेसिकली द F नेट. ओके, सो F नेट है ये, और उसका जो वर्क डन आया वो मेरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया. Now this is also the you can say the basics of work energy theorem, that like let me just give you a formal definition of work energy theorem. This is basically saying कि work done by all the forces is equal to change in kinetic energy of the body. So I'll just write it here. Work done
by all kind of forces, all kind of forces. Now there is a pseudo force कॉन्सेप्ट एज वेल, बट उसको मैं अलग से बताऊँ, तो फिलहाल के लिए इसमें सूडो फोर्स में ऐड नहीं किया, ठीक है. वर्क डन बाई ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क एक्सटर्नल कुछ हो सकता है या फिर वर्क इंटरनल हो सकता है कुछ. अगर मेरे पास कोई कॉन्जर्वेटिव है वो भी ऐड कर दो, कोई नॉन कॉन्जर्वेटिव है, नॉन कॉन्जर्वेटिव वो भी ऐड कर दो, कुछ भी है, वर्क एक्सटर्नल, इंटरनल, कॉन्जर्वेटिव, नॉन कॉन्जर्वेटिव, एवरीथिंग दैट इज गोइंग टू बी वर्क टोटल इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा के. यही मेरा फंडामेंटल फॉर्म है, ठीक है. अब ये मैं कर कैसे रहा हूँ यार, ये आया कैसे, तो इसके लिए ये जो अपन ने जो शुरू में किया है ना, उसी को हम यूज़ करेंगे. सपोज करो ये बॉडी है एम, भाई साहब इस पर मैंने फोर्स लगा दिया 4-5, ये एक लगा दिया मैंने फोर्स F1, कोई लगा दिया मैंने F2, इधर लगा दिया मैंने F3, नॉट एग्जैक्टली ऑपोजिट, लगा दिया मैंने F4, इधर से मैंने लगा दिया कुछ F5, ठीक है. अब इस स्पेस में मैंने बॉडी रखी, कहीं ज़मीन पे नहीं रखा है मैंने, ठीक है. स्पेस में कोई बॉडी है, ठीक है. स्पेस का मतलब ये मत समझना कि लाइक आउटसाइड द अर्थ, लाइक नॉट दैट काइंड ऑफ स्पेस, लाइक इन जनरल एनी स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस है मेरा, 3D स्पेस है X, Y, Z. तो स्पेस में मैंने यहाँ पे इतने फोर्सेस लगा रखे हैं और देयर कैन बी मैनी फोर्सेस. सो इन दिस केस लेट्स से इन सारे फोर्सेस को कोई ना कोई रिजल्टेंट होगा ना भाई, तो इसका कोई रिजल्टेंट होगा. सपोज करो कुछ ऐसे जा रहा है रिजल्टेंट हो, तो हॉरिजॉन्टल नहीं लेते, कुछ ऐसा ले लेते, दिस इज एफ नेट. ओके, अब इस बॉडी पे अगर इतने सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी का जो मोशन होगा नेट फोर्स के डायरेक्शन में होगा. अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो जिधर नेट फोर्स लगेगा उधर ही बॉडी मोशन करना शुरू करेगी, ठीक. तो इस केस में लेट्स से स्टार्टिंग फ्रॉम u इक्वल टू 0, सो नाउ द बॉडी इज गोइंग टू मूव अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है. सॉरी, सो इफ द बॉडी इज गोइंग टू मूव अलोंग दिस डायरेक्शन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. सपोज द बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ गई, ठीक है, यहाँ पे आ गया बॉडी, ठीक है. सो इन दिस केस व्हाट इज द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, W नेट मेरा क्या होगा, W नेट इज गोइंग टू बी वर्क डन बाय F1, वर्क डन बाय F2 प्लस 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 जितने भी अप टू वर्क डन बाय F5. ओके, वर्क डन बाय F1 ये मेरे को निकालना हो तो मैं क्या करूँ भाई, F1 डॉट, अभी मैंने सारे फोर्सेस मैंने कांस्टेंट ले रखे, तो F1 डॉट S डिस्प्लेसमेंट है मेरा, इधर मेरा सिंपल सा डेफिनेशन है. सिमिलरली वर्क डन बाय F2 डॉट S, सिमिलरली ये सब कुछ हो जाएगा F5 डॉट S, ठीक है. अब देखो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट सारे फोर्सेस के लिए मेरा डिस्प्लेसमेंट सेम है, ठीक है. तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे F1 प्लस F2 प्लस F5 तक मैं सब कुछ ऐड कर सकता हूँ, प्लस F1 प्लस F2 प्लस 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 F5 डॉट S, ठीक है. और ये सब मिलकर क्या हो जाएगा मेरा F नेट हो जाएगा, ये मेरा हो गया F नेट डॉट S, तो ठीक है. जो सारे वर्क डन होगा, जो सारे फोर्सेस का वर्क डन होगा, तो बेसिकली दैट इज गोइंग टू बी द वर्क डन बाय द F नेट. ओके, और F नेट को मैं सीधा कोई एक सिंगल फोर्स बोल सकता हूँ, ठीक है. और अगर मैंने इसको सिंगल फोर्स बोल दिया और मेरे पास कुछ डिस्प्लेसमेंट है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो निकाला मैंने, कोई F एक्सटर्नल ले लिया, ठीक है. इन दिस केस F एक्सटर्नल वाज बेसिकली माय नेट फोर्स बिकॉज नॉर्मल एंड mg वर लाइक दे वर ऑलरेडी कैंसिल ईच अदर आउट. ओके, तो ये कैंसिल कर ही रहे थे, तो मेरे पास जो नेट फोर्स बचा F एक्सटर्नल बचा, एंड इन दैट केस आई डिराइव्ड simply that my work done by that F external is basically equal to change in kinetic energy, and here also I can just replace that F net is equal to some kind of F, so I can write F net S is equal to change in kinetic energy half m v square minus u square. दिख गया ना यार यहाँ पे, work done by all the forces, this is what work total, work done by all the forces is equal to change in kinetic energy. तो ये ध्यान रहे, किसी बॉडी पे जो नेट वर्क डन होगा सारे फोर्सेस मिला के, ठीक है, वो बेसिकली मेरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा. अब देखो यार डेल्टा के है, ये डेल्टा के अगर पॉजिटिव है तो मेरा क्या होगा, डेल्टा के अगर पॉजिटिव, इसका मतलब मेरा काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है. काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब मास ऑलमोस्ट हर केस में हम कांस्टेंट लेते हैं, इसका मतलब मेरा स्पीड बढ़ रहा है. स्पीड बढ़ रहा है तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पे इस एलोशन से, अगर नेट डेल्टा के पॉजिटिव है तो दैट मीन्स कि F नेट डॉट S जो मेरा नेट वर्क डन है दैट इज पॉजिटिव. सो मैं बोल सकता हूँ W नेट इज व्हाट, पॉजिटिव. डेल्टा के इट इज नेगेटिव, मैं क्या बोल सकता हूँ, वर्क नेट भी मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा.
डेल्टा के अगर जीरो है इसका मतलब वर्क नेट भी मेरा क्या होगा, जीरो। सिंपल है, कुछ है ही नहीं, सबको पता है कि ए इज इक्वल टू बी है भाई, और बी इज इक्वल टू 2 है तो ए भी 2 होगा, बी इज इक्वल टू -3 है तो ए भी -3 होगा, और बी इज इक्वल टू 0 है तो ए भी 0 होगा। इसमें तो मैंने कुछ नई चीज़ बताई नहीं, तो ये तो फालतू सही था, ठीक है। तो यार ये मेरा समझ में आ गया कि भाई वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे होता है, और ये डेफिनेशन है हाफ एम वी स्क्वायर इज बेसिकली यू कैन से द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो दिस कंक्लूड्स आवर like basic discussion of concept of kinetic energy and the work energy theorem, and I'll see you guys in the next one.